Good morning, children. Children, I have explained you chapter 1, the clever jackal. You have done the reading of the chapter. Now, today we are going to do the back exercises. I have given you homework. These fill in the blanks. Exercise A was your homework. I will discuss your homework also. Okay, so open page number 3 of your English reader, Wordsworth English reader. Open page number 3. So under the heading comprehension, first question is A, fill in the blanks using the words given in the help box. बेटा help box is given, यहाँ पे एक help box दिया है, उसमें words हैं. इन वर्ड्स को सेलेक्ट करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. जो वर्ड जहाँ सूट करता है वो आपको चेक करना है, वहीं पे फिल करना है. राइट. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट डैश agreed to send one animal every day to the lion as his meal. सो एनिमल्स फॉरेस्ट के जो थे वो अग्री कर गए थे कि डेली एक एनिमल लायन के पास उसके खाने की तरीके से जाएगा. पर वो किस तरीके से अग्री किए थे? बिना मन के. राइट. ना चाहते हुए भी उनको अग्री करना पड़ा था. अनविलिंगली अग्री किए थे. सो द अदर वर्ड फॉर अनविलिंगली इज रिलक्टेंटली. सो द आंसर इज रिलक्टेंटली. Number 2, the jackal dash walked slowly towards the lion's den. jackal बहुत ही धीरे लायन की डेन की तरफ गया था, पर वो जानबूझ के धीरे चला था ना. तो जानते हुए कोई चीज़ करना, knowingly, जानते हुए कोई चीज़ करना. सो द अदर वर्ड फॉर knowingly इज deliberately. आप जानते हो फिर भी वो काम कर रहे हो, जानते हुए करना, ये जानबूझ के करना is deliberately. So the jackal deliberately walked slowly towards the lion's den. Number 3, the jackal very respectfully dashed for being late. अब वो लेट हो गया था तो इसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली सॉरी बोला था लायन को. सो सॉरी बोलने को क्या बोलते हैं? अपोलोजाइज्ड. सो द jackal very respectfully apologized for being late. Number 4, the lion was very angry. लायन बहुत ज़्यादा गुस्से में था. In his anger, he dashed into the well to kill the other lion. गुस्से में उसने क्या किया था? वो कूद गया था कुएं के अंदर, वेल के अंदर, दूसरे लायन को मारने के लिए. उसको समझ में भी नहीं आया कि वो मेरी ही रिफ्लेक्शन है. राइट. सो ही पाउंस्ड इनटू द वेल. सो द आंसर इज पाउंस्ड. कूद गया था ना, जंप किया था उसने वेल के अंदर. सो पाउंस्ड इनटू द वेल. नंबर 5, द जैकल्स डैश सेव्ड द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट. सारे जितने भी बचे हुए एनिमल्स थे फॉरेस्ट के, उनकी लाइफ बचाई थी जैकल ने. सो जैकल ने क्या यूज़ किया था? अपना दिमाग यूज़ किया था. इसलिए जैकल की इंटेलिजेंस की वजह से बाकी एनिमल्स बच गए थे. सो द जैकल्स इंटेलिजेंस सेव द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट. ओके. नाउ चिल्ड्रन, टर्न टू पेज नंबर 4. Number C, write the qualities of the following animals as they have been described in the story. जैसे आपकी स्टोरी में जो क्वालिटी दी है आपको वही लिखनी है. सो नंबर 1 इज़ लायन. लायन आपकी स्टोरी में मेंशन्ड है. लायन वॉज क्रूअल, लायन वॉज फेरोशियस. सो यू विल राइट क्रूअल, कॉमा, फेरोशियस. नंबर 2, आउल. It is mentioned in the story that the owl was wise. So the answer is wise. Number 3, jackal. jackal क्या था? Clever था, अक्लमंद था ना, तभी तो उसकी इंटेलिजेंस की वजह से सबकी लाइफ बच गई थी. सो jackal, the quality of jackal was clever. Right?
Let's move to the language structure. Unscramble the letters to form words with the help of meaning given. Meaning दी हुई है आपको और word jumbled letters में लिखा हुआ है, आपको उसको jumble करके proper word form करना है. Meaning is given for the help. So the first one is good luck. अच्छी किस्मत, good luck. And jumble letters में ORUNFATTE is written. So good luck is fortunate. You are fortunate enough to get good marks. तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके अच्छे मार्क्स आए. So fortunate, FORTUNATE, fortunate. Children, you are learning a new word. So learn the spelling also. Learn the meaning of the word, learn the spelling of the word. Okay? So meaning is good luck and the word is fortunate. Second, impressive, splendid. बहुत ही impressive, बहुत अच्छा. That is magnificent. MAGNIFICENT, magnificent. Then number 3, information or skill. कोई information या skill, that means knowledge. KNOWLEDGE. Number 4, a small hill. छोटी सी हिल, उसको क्या बोलते हैं? hillock. So HILLOCK, hillock. Number 5, dangerous means ferocious. FEROCIOUS, ferocious. Number 6, great surprise or wonder. बहुत अच्छा सा सरप्राइज, या फिर आप हैरान हो जाओ किसी चीज़. कोई चीज़ इतनी अच्छी हो तो आपको लगे वाओ ये पॉसिबल है भी, ओह ये तो एकदम डिफरेंट है. तो ये बोलते हैं ना, ओह वाओ अमेजिंग, आपको हैरान कर देने वाला. That is amazing. AMAZING, amazing. Okay. Now turn to page number 5, singular and plural. We have already learned how to change singular nouns to their plural forms. आपको singular noun को plural में change करना आता है. You have already done it in class 3. Now let us discuss about the plural forms of nouns that are totally different from their singular forms. जो अपने singular form से एकदम अलग होते हैं, इनको हम बोलते हैं irregular nouns. आपने किया है ये. Child, when it is singular it is child. When you change it to plural it becomes children. Okay? Then number 2 are same in the plural as in the singular form. कुछ ऐसे words होते हैं जो singular और plural के लिए same होते हैं, वो change नहीं होते हैं, चाहे singular को आप plural करो या plural को singular करो, they remain same. Deer, sheep. Number 3, do not exist. Advice और information exist ही नहीं करते. Number 4, do not have their singular forms. अब ये कुछ ऐसे words हैं जिनका singular form नहीं होता. Trousers, pants, scissors. अगर आपको trousers को singular में लिखना है तो आप लिखोगे a pair of trousers. रहेगा तब भी trousers ही. A pair of trousers मतलब एक trouser. And trousers मतलब ज़्यादा trousers, एक से ज़्यादा. ओके. सो ट्राउजर्स, पैंट्स, सिजर्स, इनका कुछ सिंगुलर एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये दे आर प्लूरल ओनली, एज इन वो प्लूरल में ही लिखा जाता है. उनको सिंगुलर लिखने के लिए आप अ पेयर ऑफ ऐड करते हैं. प्लूरल इटसेल्फ वर्ड ही आपका प्लूरल है. ओके. नाउ एक्सरसाइज बी. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस change the nouns in color into their plural forms and rewrite the sentences. Make other necessary changes wherever required. पहले तो आपको जो रेड से लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको प्लूरल में लिखना है. जब आप उनको प्लूरल में करोगे, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ
आसपास में ऐसे वर्ब्स होते हैं जो रूल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करने पड़ते हैं, जैसे इस को आर, हैज़ को हैव, राइट, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, जैसे आपने दैट चाइल्ड को किया तो प्लूरल में किया चिल्ड्रन, और दैट का प्लूरल क्या हो गया, दोज। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज कीप योर नाइफ, fork and spoon ready for use. So keep your knives, fork and spoons ready for use. आप अपने नाइफ्स को, फोक्स को और स्पून्स को रेडी रखिए यूज़ के लिए। नंबर 2, द टाइगर हैज़ ईटन अप द शीप। टाइगर ने शीप को खा लिया। So the answer is the tigers have eaten up the sheep. Tigers, हैज़ था, हैज़ को आपने हैव कर दिया क्योंकि टाइगर से टाइगर्स हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हैव आता है। शीप विल रिमेन शीप बिकॉज सिंगुलर और प्लूरल दोनों शीप ही रहता है, राइट। नाउ नंबर 3, कैन यू शूट दैट डियर ऑन द हिल साइड। सो दैट डियर मतलब आप एक पर्टिकुलर डियर के बारे में बात कर रहे हैं पॉइंट करके, दैट का हो जाएगा दोज, और डियर विल रिमेन डियर बिकॉज सिंगुलर में भी डियर होता है, प्लूरल में भी डियर होता है। सो दैट डियर विल टर्न चेंज टू दोज डियर, हिल साइड विल चेंज टू हिल साइड्स। सो कैन यू शूट दोज डियर ऑन द हिल साइड्स। Number 4, the nurse looks after the baby. So the plural of nurse is nurses, plural of baby is babies. So the nurses, looks आपका चेंज होके look हो जाएगा क्योंकि जब nurse था तो nurse के साथ s लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में s लगाते हैं, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में s नहीं लगाते हैं। So the nurses look आफ्टर द बेबीज। ओके, लुक्स से एस रिमूव करोगे आप, फाइन। नंबर 5, वॉट रिप्लाई हैव यू रिसीव्ड फ्रॉम योर अंकल। सो वॉट रिप्लाइज, वाई रिमूव करके IES, वॉट रिप्लाइज हैव यू रिसीव्ड फ्रॉम योर अंकल्स। ओके, नंबर 6, आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स बाय दिस संडे। मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करते हुए बताया था जब 1 आपको बताना होता है ट्राउजर्स, पैंट्स और सिजर्स के लिए कि 1 ट्राउजर्स हैं, 1 पैंट्स हैं, तो आप क्या बोलते हो, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, और प्लूरल में ट्राउजर्स, पैंट्स। ओके, सो आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स बाय दिस संडे। इसको जब आप चेंज करोगे तो यू विल राइट आई नीड न्यू ट्राउजर्स। अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स मतलब एक ट्राउजर चाहिए, ज़्यादा ट्राउजर्स चाहिए, तो आई नीड न्यू ट्राउजर्स बाय दिस संडे। ओके, नंबर 7, दिस बॉय अलॉन्ग विद दैट चाइल्ड प्लेज विद अ टॉय। सो दिस हो जाएगा दीज बॉयज़, बिकॉज आपको रिलेटिव जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं वो भी करने हैं ना। दिस बॉयज़ तो नहीं होगा, दिस प्लूरल के लिए नहीं यूज़ होता, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। सो दिस बॉय विल चेंज टू दीज बॉयज़, अलॉन्ग विद दैट चाइल्ड विल चेंज टू दोज चिल्ड्रन, प्ले विद, अ टॉय विल चेंज टू टॉयज़, अ टॉय की जगह आप क्या लिखोगे, टॉयज़। ओके, so the answer is these boys along with those children play with toys. Number 8, this mouse is too clever to get into that trap. So this will change to these, this का plural होता है these, that का plural होता है those. So these mice, mouse का plural क्या है, mice. So these mice आर, अब क्वेश्चन में था दिस माउस इज़, तो इज़ आपको जब आपने माउस को प्लूरल किया माइस,
तो इज भी चेंज हो जाएगा आपका आर में, हेल्पिंग वर्ब्स भी तो चेंज होते हैं ना. सो दीज mice are too clever to get into those traps. That trap, that का plural क्या था? Those. So those traps. Okay. So the eighth one is these mice are too clever to get into those traps. Fine. Now next is kinds of sentences. You have done it in class 3 also. Kinds of sentences आपने पढ़े हैं class 3 में भी. We already know that a group of words make complete sense is called a sentence. Group of words जो complete sense जिनसे निकलता है उनको आप sentence बोलते हैं. 4 types of sentences होते हैं. Statement, question, request और command, एक्सक्लेमेशन. जो स्टेटमेंट होता है इसको हम और कुछ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एसर्टिव सेंटेंसेस. स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? एसर्टिव सेंटेंसेस. स्टेटमेंट क्या होता है? द सिंपल स्टेटमेंट्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद अ फुल स्टॉप. एक सिंपल स्टेटमेंट जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट या फिर एसर्टिव सेंटेंसेस. देन क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट. ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप क्वेश्चन, जो सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. बेटा ये आपका रीकैप है. लिटरेचर के पीछे बैक एक्सरसाइजेज हैं, आपने क्लास 3 में ये सब किया हुआ है. ओके. नंबर 3 इज़ रिक्वेस्ट और कमांड. जब आप रिक्वेस्ट करते हो प्लीज़ गिव मी अ पेन, या कमांड देते हो शट द डोर, टेक आउट योर बुक, स्टैंड अप, सिट डाउन. जब आप ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, तो ये सब क्या होते हैं आपके imperative sentences. Imperative sentences make request, give order, make suggestions. जब आप सजेशन देते हो या एडवाइस देते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं, जैसे डोंट आर्ग्यू, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, ये सब सजेशंस और एडवाइस है ना, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ये भी सिंपल एक कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं. राइट. Number 4 is exclamation. What a lovely house. What a lovely dress. Hurrah, we won the match. Right? So जो sudden feelings होती हैं, the sentences that begin with a capital letter end with an exclamation mark. Sentence के last में exclamation mark होता है, या फिर कुछ sentences में exclamatory word के बाद oh, hurray, वाओ, इनके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हो और लास्ट में फुल स्टॉप यू पुट फुल स्टॉप एट दी एंड. सो दे एक्सप्रेस फीलिंग्स. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, शॉक और सरप्राइज. ओके. सो नाउ the exercise is write the kind of sentence against each of the following. Don't disturb me. आप ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, सो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड, won't you come to school? It's a question. You are asking a question. So question sentence क्या होते हैं? Interrogative sentence. Number 3, it is raining outside. एक सिंपल स्टेटमेंट है ये कि बाहर बारिश हो रही है. सो इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस. नंबर 4, नेवर टेल अ लाई. कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ये एक एडवाइस है. तो जो एडवाइस होती है वो क्या होती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओह, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज देयर आफ्टर ओ. आई हैव हर्ट माई सेल्फ. सो एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही आपको समझ आ रहा है, पर ये आपने अपने आप को चोट लगा ली. ओ, सो इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस.
चिल्ड्रन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. Otherwise, I told you exclamatory sentences express feelings of happiness, sadness, anger, shock, or surprise. So it's an exclamatory sentence. Number 6, put the books on the table. So आप ऑर्डर दे रहे हो कि बुक्स को टेबल पे रखो. So it is an imperative sentence. Number 7, the earth revolves around the sun. सो ये एक स्टेटमेंट है, फैक्ट है. सो इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस. नंबर 8, वेयर इज़ माई न्यू ड्रेस. इट्स अ क्वेश्चन. सो इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. बेटा अब आपको ये तो पता है कि असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. अगर आपको कन्वर्ट करना हो असर्टिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो आप क्या करोगे. अ स्टेटमेंट कैन बी टर्न्ड इनटू अ क्वेश्चन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. अभी हम बहुत हायर लेवल पे नहीं जाएंगे. हायर लेवल पे आप WH वर्ड्स ऐड करके चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. बट क्लास 4 के लेवल पे आप क्या करोगे, वर्ड्स का सीक्वेंस ऑर्डर चेंज करके आप उसको क्वेश्चन बना दोगे. राइट. सो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप पहले लिख देते हो. आप कौन से वर्ड्स यूज़ करके आपको इसमें क्वेश्चन बनाना है. डू, डज, डिड, वॉज. सो द फर्स्ट वन इज यू हैव अ पेन. इट्स एन एग्जाम्पल. आंसर इज गिवन. सो अब आपको इसमें डू ऐड करना है क्योंकि यू के साथ डू आता है. राइट. सो क्वेश्चन विल डू यू हैव अ पेन. क्या तुम्हारे पास पेन है. डू यू हैव अ पेन. यू इज ट्रीटेड एज प्लूरल. यू को साथ प्लूरल का रूल लगता है क्योंकि ये सेकेंड पर्सन होता है. राइट. इसीलिए प्लूरल के रूल में आप क्या लगाते हो, डू. और डज किस में लगता है, सिंगुलर में. ही, शी, इट, उसके साथ डज लगता है. राइट. यू था इसलिए आपने डू ऐड किया. डू यू हैव अ पेन, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. ही है, सिंगुलर है. सिंगुलर के पहले मैंने अभी बताया आपको क्या लगाते हैं, डज. सो डज ही लाइक्स का एस रिमूव हो जाएगा. डज के साथ या डू के साथ जो भी आपका वर्ब होता है वो रूट फॉर्म में लगता है, उसमें एस नहीं लगाते हैं. सो डज ही लाइक प्लेइंग फुटबॉल, पुट अ क्वेश्चन मार्क. नंबर 3, मिस्टर दास हैज़ अ न्यू कंप्यूटर. सो मिस्टर दास भी सिंगुलर है. सो डज मिस्टर दास हैव अ न्यू कंप्यूटर. अब डज है उसके साथ हैव लग जाएगा. बोले ना, वर्ब आपका मेन फॉर्म में लगता है. सो डज मिस्टर दास हैव अ न्यू कंप्यूटर. नंबर 4, अली वॉज लेट फॉर स्कूल. सो वॉज अली लेट फॉर स्कूल. अली वॉज, जो वॉज वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप वॉज को पहले कर देते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ आ जाता है. वॉज फर्स्ट 2 वर्ड्स को इधर उधर कर देते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करते हैं. राइट. सो वॉज अली लेट फॉर स्कूल, क्वेश्चन मार्क. Number 5, she enjoyed reading the story. So enjoyed है यानी past tense. past tense में क्या यूज़ होता है, did. So did she enjoyed को आप रूट फॉर्म में लिखोगे, बेस फॉर्म वर्ब का enjoy. So did she enjoy reading the story? Put a question mark. Okay. आई होप दिस मच इज़ क्लियर. बेटा ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये आपने लास्ट ईयर करा हुआ है, ये रिकैप है उसका. ओके. सो दैट्स व्हाई आई हैव डन इट इन अ गो. सो हियर बैक एक्सरसाइजेज आर डन. चैप्टर 1 बैक एक्सरसाइजेज आर डन. ओके. बी क्रिएटिव एंड फ्यू एक्टिविटीज़ आर लेफ्ट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. Thank you children. Have a nice day. If you have any query, you may ask. Thank you.